how to score 90 plus marks in your prelims examination of UPSC CSE 2025. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's question papers of all the subjects on this platform. In our last video, we had already discussed 7 questions from modern history which talks about nationalism. The timeline was from 1905 to 1919. We will be starting with the 8th question today, and there will be only 2 more videos and we will be done with the questions from this unit. After that, we will start with the timeline of 1919 till the time of independence, that is 1947, and then the video will be followed by socio-religious reform movements. Alright? So beginning with the first question of today, question number 8. Which one of the following movement has contributed to a split in the Indian National Congress, resulting in the emergence of moderate and extremist? So what are the options given? The first option is about the Swadeshi movement. Second is about the Quit India movement. Third is about the non-cooperation movement, and fourth is about the civil disobedience movement. So this is the easiest question of today's session, I feel. Let's have a brief overlook on the timeline again. It was 1885 when Indian National Congress was formed under the leadership of A.O. Hume. And yes, there were certain political organizations which were also formed before 1885, but the formation of Indian National Congress is said to be on 1885. And from the 1885 to 1905, the year of Bengal partition, Congress was dominated by moderates. That means those leaders of Indian National Congress who believed on the methods of petitions, prayers, the constitutional methods. But in spite of these methods, the partition of Bengal was announced on 1905, which was a huge setback for moderates. Because after this partition of Bengal, the other leaders, other persons of Indian National Congress, who were from the extremists, they had lost complete trust on the moderates, on their methods of convincing the government. Because in spite of their so much of trial through the constitutional methods, the partition of Bengal was announced. And thereafter, there was huge opinion of difference. Difference of opinion was found between the moderates and extremists, which was evident in the 1907 session of the Surat, of the Congress in the Surat. Right? So after this Bengal partition, the extremists started a movement, that is the Swadeshi and boycott movement. And they blamed the persons, the leaders of the moderate, that we are launching such a big movement which could be helpful for India, but still the top leaders of the Indian National Congress are not leading this movement. And as a result, in 1907, a huge setback for Indian National Congress and a profit for the British government was found, that is the split between the moderate and extremist. So it is very clear that the answer for this question would be Swadeshi movement. And it was easy because the other 3 options, अगर आपको थोड़ा भी टाइमलाइन का रफ आइडिया होता तो ये बहुत बाद के मूवमेंट्स थे. For example, if we talk about the non-cooperation movement, ये जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो उसमें गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी that they can launch a movement अगर हिंदूज पे सपोर्ट करे तो, जिसमें इंडिया की हर एक क्लास एक पार्टिसिपेट करे और एक मास मूवमेंट यहाँ से रेडी हो सकता है. ओके. And if we talk about, and one more thing about the non-cooperation movement was, it was called off. Gandhi ji called off this movement because of the which incident? It was called off because of the Chori Chora incident. And if we talk about the civil disobedience movement,
ये तब की बात है जब गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट करी थी ऑन द सॉल्ट टैक्स इशू, राइट। सो ये बहुत ही टाइमलाइन में आगे आता है। यहाँ पे जो सूरत स्प्लिट हुआ था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, वो 1907 में हुआ था। Now moving to the next question of today, consider the following statement. I want you all to answer this question. It is one of the easy question, but ये question mostly सब लोग गलत करते हैं। Consider the following statement. ध्यान से पढ़ेंगे। Statement first है, the first woman president of Indian National Congress was Sarojini Naidu. क्या ये स्टेटमेंट सही है? The first women president of Indian National Congress was Sarojini Naidu. क्या ये स्टेटमेंट सही है? And about the second statement, the first Muslim president of Indian National Congress was Badruddin Tyabuji. See, the statement one is not correct, it is wrong. यहाँ पे एक ट्रिकी स्टेटमेंट दिया था, अगर फर्स्ट वुमेन की बात हो रही है, सो एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में बनी थी, वुमेन प्रेसिडेंट। लेकिन अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन का नाम आता है तो हम यहाँ पे सरोजनी नायडू का आंसर सही मानेंगे। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज व्हेन वी वर रिवाइजिंग द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस formed before 1885, that is before Indian National Congress, तो उसमें हमने बॉम्बे यानी कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उसमें दो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक था पूना सार्वजनिक सभा। एंड हमने उसको ऐसे याद किया था कि मुंबई से पूना अगर आपको भाग के जाना है तो यू हैव टू रन, दैट इज MG रानादेव वाज द फाउंडर फॉर द पूना सार्वजनिक सभा। एंड द सेकंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हियर वाज रिलेटेड टू द बॉम्बे, करेक्ट। और वहां पे we said that B for Bombay and B for Badruddin Tyabuji. So he was the founder for the Bombay Presidency Association, and yes, the statement is absolutely correct that Indian National Congress में अगर फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कोई बने थे वो थे आपके बदरुद्दीन त्याबुजी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, The partition of Bengal made by Lord Curzon in 1905 lasted until। देखो, अभी तक हमने 10 क्वेश्चन किया है, वहां से ये समझ आ जाना चाहिए कि 1905 का पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड हर तरीके के सवाल आ रहे हैं कि 1905 का जो पार्टीशन है उसका रीजन क्या दिया गया, और करेक्ट रियलिटी में उसका रीजन क्या था। Who was the viceroy या फिर ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था जिसके टाइम में पार्टीशन हुआ? So answer would be the Lord Curzon, right? And what was the consequence of the 1905 partition? That is Swadeshi and boycott movement, उस पे भी क्वेश्चन है। And finally इसका annulment 1911, उस पे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि ये कब तक 1905 का ये जो पार्टीशन है वो कब तक हुआ था। That means जो एनलमेंट हम पढ़ते हैं ऑफ द बेंगल ऑफ पार्टीशन, ये उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है आपको। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इंडियन ट्रूप्स वर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वाज एंडेड। क्या ऐसा हुआ था? फर्स्ट वॉर जो है वर्ल्ड वॉर वो स्टार्टेड बिटवीन 1914 टू 1918, लेकिन हमको याद है कि बंगाल का पार्टीशन का जो एनलमेंट है वो तो 1911 में ही हो गया था, यानी कि बहुत पहले। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये बहुत ही बात की बात है, 1920 से भी बात की बात है। सो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। देन द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आंसर होगा दैट इज किंग जॉर्ज V abrogated the Curzon's Act at the Royal Darbar in Delhi in 1911। ठीक है, now moving towards the next question. This question I'm leaving on you. Just think for 2 minutes and solve this question because we had already discussed about the revolutionary activities in our last video. The revolutionary activities in Bengal, which talked about the Anushilin Samiti,
देन हमने पूना में बात करी थी, नासिक जो कॉन्स्पिरेसी केस है उसके बारे में बात करी थी, एंड द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो कि इंडिया के बाहर हो रहे थे, उसमें गदर पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन उसी पे है, दैट इज द गदर। फर्स्ट स्टेटमेंट है रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ हेडक्वार्टर्स एट द सैन फ्रांसिस्को, या फिर ये एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिंगापुर से ऑपरेट कर रही थी, और अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर बर्लिन में था, या फिर ये कम्युनिस्ट मूवमेंट था फॉर इंडियाज फ्रीडम विथ हेडक्वार्टर्स एट ताशकंद। सी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही इजी आ रहे हैं, थोड़ा भी आइडिया हो तो क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर स्पेक्ट्रम किसी ने पढ़ी है तो वहां पे क्लियर कट एक हेडिंग है, दैट इज रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड द इंडिया, जिसमें एक गदर पार्टी के बारे में बात हो रही है और सिंगापुर के बारे में बात हो रही है। बिंडापुर जो है वो भी एक अलग से वहां पे टॉपिक दे रखा है, ठीक है। तो गदर पार्टी जो एसोसिएशन है उसमें अगर लीडर या फिर मेन पर्सन जो एसोसिएटेड थे वाज दैट लाला हरदयाल जी, ठीक है। तो ये इंडिया के बाहर जिन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट किए थे, ये उनका यहाँ पे एक मूवमेंट था। तो क्लियर कट आंसर इज द A1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, it is about the Ilbert Bill controversy was related to. Can you think of a brief review about the Ilbert Bill? Okay, there were three major events which led to the formation of Indian National Congress, or we could say that the three major events which stimulated the feeling of or the growth of nationalist feeling in the people of India, and ultimately the Indian National Congress was formed. Number one was the Ilbert Bill, second was the Arms Act of 1878 and the Vernacular Press Act of 1878. तो ये तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जिसकी वजह से फाइनली ये डिसाइड हुआ दैट वी शुड मेक इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, ठीक है। तो ये इल्बर्ट बिल क्या था? हु वाज इल्बर्ट, या फिर ये जो इल्बर्ट बिल है वो क्या था? और कैन एनीबडी टेल मी हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ दिस इल्बर्ट बिल? यस, हु वाज द वाइसरॉय? So Lord Ripon is the answer. 1880 से लेके 1884 जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड रिपन थे, और उन्हीं के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था सीपी इल्बर्ट। उन्होंने एक बिल को यहाँ पे प्रपोज किया। ही सेड दैट कि जो जुरिस्डिक्शन में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको हमें यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए। बट हुआ क्या, ये जो बिल है उसका अपोजिशन बहुत ज्यादा हुआ। व्हाई? बिकॉज जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम पे बहुत सारे जो इंडियंस की तरफ से कुछ लोग थे जो कि झगड़े में, लड़ाई में 1857 के रिवॉल्ट में इन्वॉल्व थे। दे वर उन पे चार्ज लगाया गया था दैट दे रेप्ड सम ऑफ द यूरोपियन वुमेन्स, एंड और भी बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से इंडियंस पे उनका ट्रस्ट नहीं था। सो दिस वाज द रीजन कि इस बिल का बहुत ज्यादा अपोजिशन हुआ और फाइनली इस बिल को वापस ले लिया गया। इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए और इस बिल को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया एज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ अमेंडमेंट 1884, और इसमें यह बोला गया कि कम से कम मिनिमम 50% यहाँ पे यूरोपियन के जो जजेस हैं वो रहेंगे। ठीक है, दैट मीन्स 50% यूरोपियन जजेस वुड बी इन दिस। तो ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इट इज रिलेटेड टू व्हाट? फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन टू कैरी आर्म्स बाय द इंडियंस। नो, ये हो सकता है कि आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 में बोला गया हो, सो दिस इज नॉट द आंसर। Imposition of restrictions on the newspaper and magazines published in the Indian languages, नहीं। ये था आपके पास Vernacular Press Act of 1878। Can you just observe the options? ये तीनों उन एक्ट्स में से ऑप्शंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दैट मीन्स द एग्जामिनर वांट्स यू टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ द कनेक्शंस बिटवीन द वेरियस टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस।
Now, the third statement here is about the removal of disqualification imposed on the Indian magistrate with regard to the trial of Europeans. Absolutely correct. So the answer for this question is the C answer. Okay. Now, moving to the next question, which says about the most effective contribution made by Dadabhai Naoroji to cause of Indian national movement was that. कल के वीडियो में कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन था, लेकिन वो उल्टे तरीके से पूछा गया था. क्या आप उसको याद कर पा रहे हैं? कुछ इसी तरीके का एक क्वेश्चन था कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी है या फिर जो इकोनॉमिक क्रिटिक है उससे रिलेटेड कौन कौन पर्संस हैं उनका ऑप्शन में नाम दिया गया था, जिसमें एक हमने सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में पढ़ा, आरसी दत्त के बारे में पढ़ा, दादाभाई नौरोजी के बारे में पढ़ा, उनकी जो बुक्स हैं उनके बारे में देखा. यहाँ पे उल्टा पूछ लिया गया कि जो दादाभाई नौरोजी है उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश, इन्हीं के बारे में इन्होंने बताया था. ये जो बाकी की चीजें हैं उनमें इनका कोई लेना देना नहीं है. सो आंसर हो जाएगा ओनली 1. नेक्स्ट इज with reference to the period of colonial rule in India, home charges formed an important part of drain of wealth from India. Which of the following funds constituted the home charges? इनमें से कौन से funds हैं जो कि home charges में include होते हैं? ठीक है. फर्स्ट आपके पास है funds used to support the Indian office in the London. सेकेंड यहाँ पे था the funds used to pay the salaries and pensions of the British personnel engaged in India, and fund used for waging the war outside the India. Think of it. It is answerable just by the common sense. Yes. So what are the home charges? Home charges का मतलब वो सारे expenditures which were incurred in England by the Secretary of State on the behalf of India. ठीक है. मतलब इंडिया के बिहाफ पे वो सारे एक्सपेंडिचर्स which were incurred in England by the Secretary of State. तो इनमें से कौन कौन से इंक्लूडेड हैं? इट्स वेरी इजी, आप उसको कर सकते थे. इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. वॉर के अंदर जो चार्जेस लगते थे उनका खर्चा इस फंड से नहीं दिया जाता. नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन. What was the purpose with which Sir William Wedderburn and W.S. Kane had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893? What was the purpose with which Sir William Wedderburn and W.S. Kane had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893? Statement first says to agitate for Indian political reform in the House of Commons, to campaign for the entry of Indians into the imperial judiciary, to facilitate a discussion on India's independence in the British Parliament, to agitate for the entry of eminent Indians into the British Parliament. Tell me the answer. देखो इसमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. जो वेडरबर्न है उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था व्हेन इट केम टू द पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन फॉर साइमल्टेनियसली कंडक्टिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंडिया. और अगर हम ब्रिटिश कमेटी की बात करें ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो इंडियन प्रोपेगेंडा होगा इट वुड बी ऑन House of Commons by organizing the Indian Parliamentary Committee, on the platform by arranging the meetings and lectures, और press में by founding the journal India. Correct? Now, can someone tell us about the Indian Parliamentary Committee? Indian Parliamentary Committee के बारे में कोई बताना चाहेगा? इस कमेटी का फॉर्मेशन 1889 में ही किया गया था एंड इस कमेटी के चेयरमैन सर विलियम वेडरबर्न ही थे.
ठीक है, एंड इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अचीव पॉलिटिकल रिफॉर्म इन इंडिया बाय गैदरिंग द सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश पब्लिक। ओके, और इन कमेटी के कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन मेंबर से लीडर्स की बात करते हैं तो वो दादा भाई नौरोजी थे, WS केन भी थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, इट सेज व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। हमने बात किया कि 1905 के अंदर बंगाल में जो पार्टीशन हुआ था, इसके बाद द कांग्रेस लीडर्स वर नॉट हैप्पी एंड जो एक्सट्रीमिस्ट को लीड कर रहे थे, दे ऑर्गेनाइज्ड और दे स्टार्टेड अ मूवमेंट नोन एज द स्वदेशी एंड स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। तो जो इमीडिएट कॉज माना जाएगा स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का, वो बंगाल का पार्टीशन माना जाएगा जो कि 1905 में हुआ था। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है उनको देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन है द पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय लॉर्ड कर्जन। So statement A is absolutely correct. Coming to the next question. In the context of the Indian freedom struggle, 16th October 1905 is well known for which one of the following reason? फिर से वही टाइमलाइन आ गया है, वही ईयर का क्वेश्चन आ गया कि 1905 is well known for what? फर्स्ट स्टेटमेंट है The formal proclamation of Swadeshi movement was made in Calcutta Town Hall. Partition of Bengal came into effect. Dadabhai Naoroji declared that the goal of Indian National Congress was Swaraj. Lokmanya Tilak started the Swadeshi movement in the Pune. अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, स्टेटमेंट 3 आप आराम से हटा सकते थे। अब यहाँ पे इनका 16 अक्टूबर इन्होंने काफी स्पेसिफिक पूछ लिया है। अगर 1905 आता तो ठीक है, हम बोल सकते थे कि बंगाल पार्टीशन की बात हुई है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द डेट, दैट इज 16 अक्टूबर। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है विच इज दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे स्वदेश और बॉयकॉट मूवमेंट का जो ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन किया गया था वो इसी डेट को किया गया था। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट है, इसके लिए भी उल्टा क्वेश्चन बन सकता है कि इनके टाइम पे जो वाइसरॉय है वो कौन थे। सो बेसिकली यहाँ पे है लॉर्ड कर्जन वाज अ वाइसरॉय, करेक्ट। और जब एल्बर्ट बिल की हमने बात करी, वहां पे भी हमने बात करा कि जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है ही वाज लॉर्ड रिपन। एंड जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ दैट टाइम इट वाज लॉर्ड डफरिन। So you have to remember the Viceroy of India with respect to the parallel events which were happening at that time. ठीक है, तो रॉलेट एक्ट की बात करते हैं तो the Viceroy was the Lord Chelmsford, right? It is very easy question. रॉलेट एक्ट के बारे में if someone knows, you can write down in the comment section what was the Rowlatt Act. And the next question is also very easy. That is the first conference of the Indian National Congress was held at कोलकाता, लाहौर, मुंबई या फिर पुणे। इनमें से कहाँ हुआ था? आपका जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुआ था? इट वॉज इन मुंबई। एक्चुअली पहले पुणे में होने वाला था, बट एट दैट टाइम बहुत ही ज्यादा प्लेग वाली कंडीशंस हो गई थी एंड दे हैड टू शिफ्ट इट। और यहाँ पे जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस पर देखा गया वो आपके पास बॉम्बे में देखा गया। So about the next question is, consider the following statement about the Madam Bhikaji Cama. यहाँ से हम अब नेक्स्ट जो वीडियो है वहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। I would recommend you all to revise the revolutionary activities which happened outside the India, जैसे कि गदर पार्टी है, और उसी चैप्टर में आपको मैडम भिकाजी कामा का भी नाम मिलेगा। और वहाँ के बाद हम ये क्वेश्चंस आराम से कल खत्म कर सकते हैं। ये यूनिट आपकी कल खत्म हो जाएगी, ठीक है। So that was all about today's video. If you are really liking our initiative, please do support us by subscribing our channel, share our videos as much as possible. Okay, and for the better connectivity, these questions we will be solving each and every day at 8 p.m. So you can join the video at 8 p.m. so that we could interact more on this question answer session. Okay, thank you so much.